सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। विश्व के विशालतम जनतंत्र के जन्म पर राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां हमें आज भी उसी ऐतिहासिक दिन का स्मरण कराती हैं। 26 जनवरी 1950 हमारा गणतंत्र दिवस। आज श्री जैन विद्यालय कोलकाता देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाते हुए आह्लादित तो है, साथ ही उस जिम्मेदारी का एहसास भी हमें है जिसके साथ हमें विकास के पथ पर अग्रसर होना है। आज बातें करेंगे हमारे गौरवशाली इतिहास की और तैयारी करेंगे एक स्वर्णिम भविष्य की। आइए विद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण कर आज के इस उत्सव का शुभारंभ करते हैं। The Constitution of India, framed by a committee headed by Baba Saheb Ambedkar, was adopted by the Constituent Assembly of India on 26th November 1949 and became effective on 26th January 1950. The Indian Constitution declares India a sovereign, secular, socialist, democratic republic, assuring its citizens justice, equality, and liberty, and promotes fraternity. Now, India is a federal republic. What a federal republic is? A federal republic is a republic where the administrative divisions, that is the states and the provinces, they retain a degree of autonomy which is constitutionally protected. Telling us more about the Constitution of India and the history of India as a republic is Mayank Rai,
a student of class 11 of our school, who is presenting his speech in English. While India's Independence Day celebrates its freedom from the British rule, the Republic Day celebrates the coming into force of its constitution. The Republic Day is a red-letter day in the Indian calendar where the country marks and celebrates the date on which the Constitution of India came into effect on 26th January 1950, replacing the Government of India Act as the governing document and thus turning the nation into a newly formed republic. All these things are known to us, but how many of us do know why the date 26th January was chosen in particular? Good morning, Honorable Principal Sir, respected teachers, and my dear friends. I am Mayank Rai, a student of class 11, and I am extremely flattered to have this opportunity to deliver a speech on this auspicious occasion. So friends, 26th January was chosen as the date for Republic Day because it was on this day in the year 1929 when the declaration of Poorn Swaraj was proclaimed by the Indian National Congress in the lieu of the realm's status as a dominion, later instated by the departing British regime. India obtained its independence on 15th August 1947 as a constitutional monarchy. The country, though, didn't yet have a permanent constitution. Instead, its laws were based on modified Colonial Government of India Act 1935. On 29th August 1947, a resolution was moved for the appointment of drafting committee, which was appointed to draft a permanent constitution with Dr. B.R. Ambedkar as its chairman. A draft constitution was prepared by the committee and submitted to the Assembly on 4th November 1947. The Assembly met in sessions open to public for 166 days, spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days before adopting the Constitution. After many deliberations and some modifications, the 308 members of the Assembly signed 2 handwritten copies of the document, one each in Hindi and English, on 24th January 1950. 2 days later, which was on 26th January 1950, it came into effect throughout the whole nation. On that day, Dr. Rajendra Prasad began his first term of office as the President of the Indian Union, and the Constituent Assembly became the Parliament of India under the provisions of the new Constituent. So friends, that's why the date 26th January was chosen as the date for Republic Day. Now I would like to conclude my words with some beautiful lines by Dr. Mukesh Agarwal about the Constitution. 470 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूचियां हैं मुझमें। मैं 104 संशोधन की दास्तां हूं, देश का सर्वोच्च विधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। अन्याय कभी ना होने दूंगा, कभी भी कोई पक्ष न लूंगा। मैं ही भारतवर्ष का ईमान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। संविधान सभाकारिणी जिसने बनाया मुझको, मैं आज हर रोग का निदान हूं। देश का सर्वोच्च विधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। ये है हमारा प्यारा भारतवर्ष, जिसके बारे में मैक्स म्यूलर ने कहा था कि मानव जाति का अगर कहीं सर्वोच्च विकास हुआ है तो वो हिंदुस्तान में हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, विश्व में कहीं भी सभ्यताएं आगे बढ़ी हैं, सभ्यताओं का विकास हुआ है तो वो सदैव युद्ध के बल पर। भारतवर्ष दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां
1 लाख वर्षों के इतिहास में भारत ने कभी भी किसी देश में घुसपैठ करने की, किसी देश पर अधिकार जमाने की चेष्टा नहीं की। ये है हमारे भारत की महिमा, और इसी महिमा का गान कर रहा है अनुभव शर्मा, 9वीं कक्षा का विद्यार्थी। पाठ कर रहा है प्रसाद की कविता भारत महिमा का। सुप्रभात। आज 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस, और इस पावन अवसर पर मैं अनुभव शर्मा छायावादी काव्य धारा के शलाका पुरुष कविवर जयशंकर प्रसाद की कविता भारत महिमा का पाठ करने जा रहा हूं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। अरुण के तन लेकर निज हाथ, वरुण पथ पर हम बढ़े अभी। सुना है दधीचि का वह त्याग, हमारी जातीयता विकास। पुरंदर ने पविसे है लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह। दे रही अभी दिखाई भग्न, मग्न रत्नाकर में वह राह। धर्म का ले ले कर जो नाम, हुआ करती बलि कर दी बंद। हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को मिला दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्म भूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर। खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित के पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि से सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, भारतवर्ष विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। पिछले वर्षों में जिन नीतियों और सुधार कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया है, उनके जरिए अब भारत तीव्र गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सामाजिक समावेश ने एक बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में सक्षम बनाया है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में तो अब विश्व स्तर पर काम हो रहा है।
साथ ही हमारी टैक्स व्यवस्था में नित नए सुधार हो रहे हैं और ये व्यवस्था और भी सुदृढ़ हुई है। सब्जी और फलों के निर्यात की बात करें तो भारतवर्ष का स्थान विश्व में प्रथम होगा। क्या रही है हमारी उपलब्धियां पिछले 72 वर्षों में? किन चुनौतियों का किया है सामना, कहां तक पहुंचे हैं और अब अगली मंजिल कहां है? इन सारी बातों का लेखा जोखा कर रहा है 12वीं कक्षा का विद्यार्थी आर्यन मिश्रा हिंदी में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा है। परम आदरणीय गुरुजन एवं परम स्नेही सहपाठियों, आज हम सब स्वर्ग से भी बढ़कर अपनी जननी जन्मभूमि आबादी के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र महान भारतवर्ष के सबसे प्रमुख पर्व गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले 7 दशकों में हम वैध गर्व के साथ पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमारे देश ने न केवल अपने लोकतांत्रिक संविधान का पालन किया है, बल्कि इस दस्तावेज में प्राण फूंकने और लोकतांत्रिक लोकाचार को गहरा करने में भी जबरदस्त प्रगति की है। हमने प्रगतिशील रूप से जनता को अपने गणराज्य के केंद्र में रखा है और न केवल सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में भी उभरे हैं जो एक समृद्ध संसदीय प्रणाली के साथ एक जीवंत बहुलवादी संस्कृति का चमकता हुआ प्रतीक बना हुआ है। एक स्वतंत्र समाज के अधिकारों की रक्षा में एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करने वाला संविधान है भारत। कोई भी राष्ट्र अपने इतिहास की उपेक्षा नहीं कर सकता। यह याद रखना चाहिए कि अपने ही लोगों के बीच एकता की अनुपस्थिति के कारण भारत पर कई 100 वर्षों तक विदेशियों द्वारा आक्रमण और शासन किया गया था। रोशनी का कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इंतजाम होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भी लिखा हो माथे पर, मगर सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BR अम्बेडकर जैसे महान नेताओं ने एक नई राष्ट्रीय पहचान बनाई और 500 से अधिक रियासतों को एक राष्ट्र में एकत्रित किया। जैसे कि पटेल ने कहा, सदियों पुरानी निरंकुशता का पूर्ण उन्मूलन एक असाधारण तेज, कुशल और शांतिपूर्ण संक्रमण था। इन 70 वर्षों के दौरान हमारे पास गौरव और उपलब्धि के क्षण के साथ साथ आपातकाल के काले दिनों की तरह पीड़ा और विपथन के क्षण भी रहे हैं, परंतु हमारे मस्तिष्क में बच्चन जी की एक पंक्ति गुंजित होकर एक स्वर में गाती थी, प्रलय के निस्तब्धता से दबता नहीं निर्माण का सुख, नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर हम। हालांकि एक राष्ट्र के रूप में हमने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी गहरी निस्तब्धता कभी नहीं खोई है। हमें अपने सामाजिक पूंजी का विस्तार करने और अम्बेडकर जी को सामाजिक लोकतंत्र कहने वाले को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें अपनी जड़ों को फिर से खोजना होगा और वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, दृष्टिकोण से निहित समावेशी बहुलवादी विश्व दृष्टिकोण से प्रेरणा लेनी होगी, जो हम सभी को विरासत में मिली है। हमें आज हमारे पास मौजूद कई विभाजनों को पाटने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमारे देश की विकास गाथा में बढ़ने और योगदान करने के लिए समान अवसर दिए जाएं। हमने अपने एक राष्ट्रीय प्रतीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई थी। देश की औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों पर महान बोस का महात्मा गांधी से गहरा मतभेद था। इसी तरह पटेल के भी जवाहरलाल नेहरू से मतभेद थे, लेकिन हमारे देश की आजादी के लिए लड़ने वाले इन महान पुरुषों और महिलाओं की विशेषता थी उनका जुनून और समर्पण, हमारे लोगों के स्वतंत्र और पूर्ण जीवन जीने के अधिकारों के लिए उनकी चिंता। यह वही चिंता है जो आजादी के बाद की सरकारों की प्रेरक शक्ति रही है।
जातिगत भेदभाव और अन्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। ये चुनौतियां कितनी भी विकट लगें, इनसे पार पाना असंभव नहीं है, बशर्ते हम काम करें। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमें टीम इंडिया के रूप में याद दिलाते रहते हैं। समय आ गया है कि हम राज्य स्वतंत्रता को सुराज्य सुशासन में बदल दें। अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव पर रखा गया है और सतत आर्थिक विकास को गति देने के लिए परिस्थिति की तंत्र के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमें एक साथ अपना सामूहिक ध्यान अपनी राजनीति, सामाजिक ताने बाने और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित करना चाहिए। हमें जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार पर ध्यान देना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जिसने चरित्र, क्षमता और आचरण के माध्यम से खुद को प्रतिष्ठित किया हो। हमें राजनीतिक संबद्धता के बावजूद समावेशी विकास पर अधिक तेजी से ध्यान केंद्रित करने की एक राजनीतिक सहमति बनानी चाहिए। राष्ट्रहित हमारे कार्यों की कसौटी होना चाहिए। हमारी सभी पहचान भाषाई, धार्मिक और क्षेत्रीय राष्ट्रीय पहचान से अधिक होनी चाहिए। मैं अपने देशवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कभी देता है ये खुशियां, कभी दिल तोड़ देता है। ये जीवन भी अनोखी सी कहानी जोड़ देता है। हाँ न कोसो इस कदर तुम मुश्किलों से हार के इसको, न कोसो इस कदर तुम मुश्किलों से हार के इसको, कि हर एक मोड़ पर सीखें बड़ी बेजोड़ देता है, कि हर एक मोड़ पर सीखें बड़ी बेजोड़ देता है। अंत में मेरी वाणी गुंजित होकर एक स्वर में माँ भारती से यह वंदना करती है कि तमन्ना की इकाई गर दहाई में बदल जाए, पहाड़ी सा मेरा जीवन रुबाई में बदल जाए। तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन, हाँ तुम अपने अंक में ले लो तो मेरा शून्य सा जीवन सफलता की किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए, सफलता के किसी स्वर्णिम इकाई में बदल जाए। धन्यवाद। एक विशेष सूचना, श्रीजन विद्यालय कोलकाता विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में विश्वास रखता है। इसलिए समय समय पर विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में, कार्यक्रमों में जो छात्र हिस्सा लेते हैं, विजयी होते हैं, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है और इस तरह उनका उत्साह वर्धन किया जाता है। ऐसे ही कुछ प्रतिभावान विद्यार्थियों को कल गणतंत्र दिवस समारोह में विद्यालय में पुरस्कृत किया जाएगा। कोविड की वजह से विद्यार्थियों की जगह उनके माता पिता आकर ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।